Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. Hope you all are fine. And I was not feeling well, due to which I cannot deliver lectures in the last few days. But Alhamdulillah, now I'm feeling better. Continuing general organic chemistry, which we were discussing, and today we will discuss fewer more concepts which comes in general organic chemistry. So first, this lecture will be very important and beneficial for class 11th, class 12th, NEET, IIT, and JEE students. I hope you will watch this lecture keenly up to the end. So before starting, I would like to tell you that in today's lecture, we are going to discuss a few concepts like in today's lecture, first we will discuss type or nature of carbon atoms in organic compounds. In organic compounds, what type of carbon atoms are to be found. And as you know, we often call carbon atoms as a primary carbon atoms, secondary, tertiary, and quaternary. So in today's lecture, in first part of this lecture, we are going to discuss type on the basis of nature of carbon atoms in organic compounds. So in today's lecture, we are going to discuss types of carbon atoms. How many carbon atoms are to be found in organic compounds on the basis of their nature? And depending, if we talk about the nature of carbon atoms, it has been found that there are four types of carbon atoms in organic compounds. Number first, that is primary carbon atom, which is also written as 1 degree carbon. Okay, so today we are discussing how many types of carbon atoms are present in organic compounds. So the first type of carbon atom is primary carbon atom, which is also known as 1 degree carbon atom. The second type of carbon atom is known as secondary carbon atom, which is also written as 2 degree carbon atom. Third one is tertiary carbon atom, which we also read or write as 3 degree carbon atom. Okay, and the last one is quaternary carbon atom, which we write as 4 degree carbon atom. So I hope you people will take this lecture on a serious note. So before we proceed, I would like to take you people to take a screenshot. Okay, now we will discuss these carbon atoms like primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom, and quaternary carbon atoms वन बाय वन. यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक देखे गए हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमें ये देखना है आज हमारा पहला जो कंसेप्ट हमारा है दैट इज कि कितने तरह के कार्बन एटम्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. तो डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर इट हैज बीन फाउंड कि 4 तरह के कार्बन एटम्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. प्राइमरी और 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री, टर्शियरी और 3 डिग्री, क्वाटरनरी जिसको हम 4 डिग्री भी बोलते हैं कार्बन एटम. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन 4 जो तरह के हमें कार्बन एटम्स अवेलेबल होते हैं. वी विल डिस्कस. सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी कार्बन एटम किसको बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, प्राइमरी कार्बन एटम और 1 डिग्री कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो कनेक्ट होता है एक कार्बन एटम से. यानी एक ऐसा कार्बन एटम जो लिंक हुआ होता है, जो कनेक्ट हुआ होता है एक कार्बन एटम से, और उसकी बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई होती है हाइड्रोजन से. ठीक है, यानी अगर मानो मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, ये कनेक्ट कितने कार्बन के साथ है, सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्ट है. यानी ये ऐसा कार्बन जो एक कार्बन के साथ कनेक्ट हो और इसकी बाकी वैलेंसीज जो होंगी दे विल बी सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन. आप देखो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है,
4 में से एक बॉन्ड इसने एक कार्बन के साथ बनाया और बाकी जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बनाया है। तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम is that carbon atom which is connected to only one carbon atom। जो कनेक्ट होता है सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ और उसकी बाकी जो वैलेंसीज होती है वो सेटिस्फाई होती है किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे लिख लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा प्रोपेन की। प्रोपेन हमारे पास है, ठीक है, लाइक CH3 CH2 CH3। ये वाला जो कार्बन है इसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कनेक्ट है एक कार्बन के साथ डायरेक्टली और बाकी 3 वैलेंसी किसके किसके साथ इसकी सेटिस्फाई हुई है? हाइड्रोजन के साथ। चलो इसका हम कंप्लीट जो इसकी फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। दिस इज CH3 देन CH2 और फिर से CH3। अब आप मुझे बोलो ये वाला जो कार्बन है ये क्या है? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है एक कार्बन से और बाकी 3 सेटिस्फाई हो गई है 3 हाइड्रोजन से। तो आई मीन टू से ऐसा कार्बन जो कनेक्ट होगा, ठीक है, जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो ये क्या है हमारा? 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन क्या है? ये भी 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, बाकी इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। तो ये भी क्या रहेगा? प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। अब जो बीच वाला है ये कौन सा कार्बन होगा? ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो याद रखना है प्राइमरी कार्बन जो है ये कौन सा कार्बन होता है? वी कैन से ए कार्बन एटम which is linked or attached directly to only one कार्बन एटम। हम अपनी नेटिव और सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि ऐसा कार्बन एटम जो जुड़ा होगा सिर्फ एक कार्बन एटम से और बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी किससे? हाइड्रोजन से। सच टाइप ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज प्राइमरी कार्बन एटम। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, हम ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला कार्बन क्या है, तो ये क्या होगा? इट विल बी प्राइमरी कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली। इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या है? ये भी प्राइमरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है सिर्फ एक कार्बन से। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम्स। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आई होगी कि प्राइमरी कार्बन एटम ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं जो जुड़े होंगे, वो ऐसा कार्बन जो जुड़ा होगा सिर्फ एक कार्बन से और उसकी बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन से। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी किसको बोलेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अब आगे सेकेंडरी। नंबर सेकंड हमारा जो है दैट इज सेकेंडरी। Now, what is secondary carbon atom? As the name suggests, secondary carbon atom एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो जुड़ा होगा दो कार्बन से। सेकेंडरी मीन्स टू, यानी एक ऐसा कार्बन जो जुड़ा होगा दो कार्बन एटम से, बाकी वैलेंसीज उसकी सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन से। ऐसे कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। मानो मेरे पास एक कार्बन है और ये कनेक्ट हुआ है, जुड़ा है कितने कार्बन से? दो कार्बन से। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू टू अदर कार्बन एटम्स। तो सच टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। उतना टफ नहीं है, आपको ये याद रखना है कि कार्बन कितने कार्बन के साथ लिंक है। अगर एक कार्बन, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, अगर कार्बन कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो प्राइमरी कहलाएगा। अगर कार्बन एटम अटैच है दो कार्बन एटम से, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री। अभी हम जो बात कर रहे थे प्रोपेन की, अगर हम प्रोपेन की एग्जांपल फिर से रिपीट करें तो दिस इज CH3 CH2 CH3। ये वाला कार्बन क्या था? ये प्राइमरी था और 1 डिग्री था। ये वाला कार्बन क्या था? प्राइमरी और 1 डिग्री, क्योंकि ये कनेक्ट था एक कार्बन से, ये भी कनेक्ट था एक कार्बन से। लेकिन जो ये बीच वाला कार्बन है, आप जरा देखो क्या ये प्राइमरी है? नहीं, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली लिंक है दो कार्बन से, यहां से एक और यहां से दो। मतलब बीच वाला कार्बन जो है ये जुड़ा है दो कार्बन से, और सच टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी।
ठीक है। तो ऐसा कार्बन एटम जो जुड़ा होगा दो कार्बन एटम से, बाकी वैलेंसीज उसकी सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन से, सच टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन एटम। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, पेंटेन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री और प्राइमरी क्योंकि एक से कनेक्ट है। ये वाला जो है ये कितना होता है, ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये भी कनेक्ट है एक ही कार्बन एटम से। अब जो बीच वाले है जैसे ये वाला है, ये क्या है, सेकेंडरी है क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है दो कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन भी क्या है, ये भी सेकेंडरी है क्यों, क्योंकि ये भी जुड़ा है एक दो, तो ये भी सेकेंडरी। ये वाला क्या है, ये भी सेकेंडरी है क्योंकि ये भी जुड़ा है दो से, एक और दो। ठीक है। तो ये जो हमारा पेंटेन है इसमें 3 सेकेंडरी कार्बन और 2 इसमें प्राइमरी कार्बन होते हैं। एक और चीज मैं यहां से आपको बोल दूं कि जो प्राइमरी कार्बन एटम होता है, प्राइमरी कार्बन एटम की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी कार्बन एटम में एक कार्बन मिनिमम दो कार्बन से जुड़ा होगा। आई मीन टू से कि प्राइमरी कार्बन एटम में देखो जैसे हम बात भी कर रहे थे, ठीक है, तो ये वाला क्या है, प्राइमरी है, ये वाला क्या है, प्राइमरी है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बन एटम की, तो प्राइमरी कार्बन एटम जो होता है ये जुड़ा होता है सिर्फ एक कार्बन से। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करें, जैसे ये वाला क्या है, सेकेंडरी क्योंकि दो से गिरा है, ये वाला क्या है, सेकेंडरी क्योंकि दो से गिरा है। तो याद रखना है कि सेकेंडरी कार्बन एटम में क्या होता है कि एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा दो बाकी कार्बन से गिरा होगा, और इस तरह के कार्बन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। नाउ वी विल प्रोसीड टू अनदर टाइप ऑफ कार्बन एटम विच इज नोन एज टर्शियरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन एटम, और इट इज ऑल्सो नोन एज 3 डिग्री कार्बन एटम। इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम। अब ये टर्शियरी कार्बन एटम क्या होता है, द नेम सजेस्ट्स, जैसे हम पिछले दो तरह के कार्बन एटम्स को डिफाइन कर चुके हैं। टर्शियरी कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो गिरा होगा 3 कार्बन एटम से। कितने से, 3 कार्बन एटम से। जैसे मेरे पास कार्बन है, ठीक है, तो ये गिरा है 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी इसकी जो 4 वैलेंसीज है, 4 में से 3 सेटिस्फाई की है 3 कार्बन ने, और चौथी वाली ऑब्वियसली कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। ठीक है। तो इस तरह के कार्बन को, इस तरह के कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री और टर्शियरी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो कार्बन है, हाँ, हमारा जो कार्बन है वो कितने कार्बन से गिरा है। अगर वो एक कार्बन से गिरा है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कहलाएगा, अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कहलाएगा, अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इस कार्बन की बात की, ये गिरा है, जुड़ा है 3 से, 1 2 3, यहाँ पे हम अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन से ये जुड़ा है, तो इस तरह के कार्बन को क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन एटम और 3 डिग्री कार्बन एटम। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है लाइक दिस। आपसे पूछा जा रहा है ये वाला कार्बन क्या है, तो आप झट से बोलोगे प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन से कनेक्ट है। ये वाला क्या है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक से कनेक्ट है। ये वाला क्या है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक से कनेक्ट। अब बीच वाला जो है जरा बताओ ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर सराउंडेड टू इट, कितने कार्बन एटम्स ने इसको घेर के रखा है, जरा देखो, 1 2 3। तो इस तरह के कार्बन को हम बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, और देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, तो याद रखना है टर्शियरी कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो गिरा होगा, जो सराउंड हुआ होगा, जो जुड़ा होगा 3 कार्बन एटम से, और बाकी जो एक वैलेंसी होगी वो ऑब्वियसली किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से। सच ए टाइप ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक, इसके बाद बचता हमारा क्वाटरनरी, लास्ट वन। इसमें क्या है, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी हम बोलते हैं 4 को। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा भी सकते हो कि क्वाटरनरी में क्वाटरनरी कार्बन एटम कैसा कार्बन एटम हुआ होगा। क्वाटरनरी कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है विच इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स, जो गिरा होगा, जुड़ा होगा 4 कार्बन एटम से। सच ए टाइप ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। जैसे मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 4 अदर, इट इज लिक्विड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो सच ए टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह के कार्बन को हम बोलते हैं 4 डिग्री, क्योंकि ये गिरा है कितने, 4 कार्बन एटम से, इट इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स।
एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है CH3C, CH3, CH3 एंड CH3। ये वाला टर्मिनल है तो प्राइमरी क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। क्यों क्यों ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये जुड़ा है एक कार्बन से डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, और ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। अब बचता है बीच वाला, जो सेंटर वाला कार्बन है, ठीक है। जरा बोलो कि ये वाला कार्बन जो है ये कितने कार्बन से गिरा है डायरेक्टली, एक। if we number it we will write it 1 2 3 4, there are 4 carbon atoms surrounded to it। इसके इर्द गिर्द में डायरेक्टली 4 कार्बन एटम है, तो इस वाले को हम बोलेंगे 4 डिग्री, और we will write it quaternary carbon atom। I hope कि types of carbon atoms on the basis of their nature आपको समझ आया होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में 4 तरह के कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी ऐसा कार्बन एटम जो जुड़ा होगा एक कार्बन एटम से, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी उसकी हाइड्रोजन से। सेकेंडरी कार्बन एटम जुड़ा होगा 2 कार्बन एटम से। टर्शियरी कार्बन एटम जुड़ा होगा 3 कार्बन एटम से और बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से। और क्वाटरनरी या 4 डिग्री जिसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन एटम व्हिच इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम, जो डायरेक्टली लिंक होगा 4 कार्बन एटम से। तो पहला पार्ट जो हमारा था that was types or nature of carbon atoms in organic compounds, that was primary, secondary, tertiary and quaternary। I hope कि अब आपको इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, टर्शियरी किसको बोलते हैं और क्वाटरनरी किसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ our second concept, our second जो यहाँ पे हमारा जो डिस्कस करने वाला जो भी कंसेप्ट है या जो हमारा कंटेंट है, that is types of chains। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, types of carbon chains in organic compounds। यानी जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कितनी तरह की कार्बन चेन्स पाई जाती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन चेन्स आर फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे 2 तरह की चेन्स होती है, नॉर्मली यहाँ पे 2 तरह की चेन्स होती है। फर्स्ट वन इज नोन है सिट्रेट चेन, या हमें क्लासिफिकेशन में भी पढ़नी है, सिट्रेट चेन alkanes, citrate chain alkanes। और second one that is branched chain, second one is known as branched chain alkanes, ठीक है। now अगर हम बात करें स्ट्रेट चेन अल्केन की, what is स्ट्रेट चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन हम किसको बोलते हैं, एक ऐसी चेन कार्बन एटम्स की जो स्ट्रेट जा रही होगी, जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक चेन बनाऊं कार्बन की इस तरह की, अगर आप यहाँ से देखोगे ये कार्बन जो हमारी चेन है ये कंटिन्यूसली जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, इसके दाएं बाएं कोई भी चेन, कोई भी सबस्टेंट नहीं जुड़ा है, ठीक है, कोई भी कार्बन का ग्रुप नहीं जुड़ा है। इस तरह की चेन को बोलते हैं सिट्रेट चेन एल्केन, और इसको नॉर्मल चेन भी बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर में जब हम या क्लासिफिकेशन में जब भी हम बात करते हैं तो नॉर्मल चेन और स्ट्रेट चेन अल्केन, तो स्ट्रेट चेन अल्केन और नॉर्मल जो चेन होती है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट अल्केन्स containing continuous chain of carbon atoms। ऐसे अल्केन्स जिनमें कंटिन्यूअस चेन होती है कार्बन एटम्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे अल्केन्स को बोलते हैं सिट्रेट चेन अल्केन। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे दी है, फिर आप कार्बन से इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकते हो। ऐसी चेन जो कंटिन्यूअस है और स्ट्रेट जा रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, देयर इज नो ब्रांचिंग इन सच case of alkanes, and such type of chains are known as straight chain alkanes or we call them as normal chain alkanes। okay, चलो अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH3। जरा आप नॉमेनक्लेचर में मैं आपको सिखाऊंगा नेमिंग कैसे करते हैं, फिलहाल आप याद रखो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन जो भी चेन होती है अल्केन की उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप। क्या करते हैं, प्रॉप। और जो यहाँ पे हमें देखना है वेदर इट इज सैचुरेट और अनसैचुरेट, क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो दिख रहा है हमें कि सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो सुफिक्स यूज होगा, ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स।
सुफिक्स यहाँ पे यूज होगा एन, ठीक है। तो इस कंपाउंड के, इस स्ट्रेट चेन अल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर आप देख सकते हो इस चेन में, अगर आप इस अल्केन को देखोगे, यहाँ पे कार्बन जो है आपस में कनेक्ट है और स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। एक और चीज आपको याद रखना है कि स्ट्रेट चेन अल्केन में एक कार्बन मैक्सिमम दो कार्बन से जुड़ा होगा। यानी देखो, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन जो बीच वाले कार्बन है, यानी अगर इस कार्बन की बात करेंगे, ये मैक्सिमम कितने कार्बन से जुड़ा है? दो कार्बन से। इसी तरह से ये जो कार्बन है, ये मैक्सिमम कितने कार्बन से जुड़ा है? दो कार्बन से जुड़ा है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि स्ट्रेट चेन अल्केन या तो ऐसा अल्केन होता है जो कंटेन करता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्ट्रेट चेन अल्केन में एक कार्बन मैक्सिमम दो कार्बन से, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा वो दो कार्बन से जुड़ा रह सकता है। और इस तरह की कार्बन चेन को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन और नॉर्मल अल्केन। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, तो आप मुझे बोलो ये किस तरह का स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? एक, दो, तीन। तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन। तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, ऊपर नीचे कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन में आता है प्रोपेन। इस तरह से अगर मैं ठीक है और एक और कंपाउंड लिखूं, आप देखो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक कार्बन, दो, तीन, चार। तो बाकी जो जहां जहां पे भी हम कार्बन यहाँ पे लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमें एज्यूम करना होता है बॉन्ड लाइन में कि यहाँ पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया है रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन। एन भी लिख सकते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा नॉमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में कि किस तरह से एन का मतलब क्या होता है। याद रखना, एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, नॉर्मल हमारी अल्केन है, कोई ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे, इसका नाम क्या होगा? आपको कार्बन काउंट करने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह वाले चेन के लिए, अल्केन के लिए हम हेक्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा हेक्सेन। ये आपको आगे नॉमेनक्लेचर में मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल आप इतना याद रखो कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स क्या होती है। ऐसी चेन होती है जिसमें कार्बन एटम्स लिखे हुए होते हैं कंटिन्यूअसली स्ट्रेट, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, और एक कार्बन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी स्ट्रेट चेन अल्केन। तो जो हमारी, जैसे हम कहते हैं कि इथेन हो गया, या प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सारी एग्जांपल्स किसकी है? स्ट्रेट चेन अल्केन की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस ब्रांचेड चेन अल्केन। तो ब्रांचेड चेन अल्केन जो होते हैं, ये कौन से अल्केन होते हैं? तो ये स्ट्रेट चेन अल्केन के अपोजिट में होते हैं। ऐसे अल्केन्स जिनमें एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस अटैच होती है, किसकी? कार्बन चेन की। जैसे हम बात करेंगे, अगर मेरे पास एक कार्बन चेन है लाइक दिस, ठीक है, ये तो स्ट्रेट थी, लेकिन कहीं से यहाँ पे क्या आ रही है? ब्रांच आ रही है। आप देखो कि कार्बन चेन जो थी वो स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन कहीं से यहाँ पे क्या हो गया? कोई कार्बन का ग्रुप इस पे लग गया, यहाँ से कहीं से भी, ठीक है। लेकिन याद रखना है, पहले और एंड वाले कार्बन को छोड़ के। पहला कौन सा कार्बन है? ये वाला। एंड वाला कौन सा? ये वाला। पहले और एंड वाले कार्बन को छोड़ के अगर किसी भी कार्बन एटम पे कोई कार्बन का ग्रुप लग रहा है, तो उस चेन को हम बोलेंगे ब्रांचेड चेन अल्केन। तो हाउ कैन वी डिफाइन देन ब्रांचेड चेन अल्केन? वी कैन डिफाइन दिस ब्रांचेड चेन अल्केन। अगर हम बात करें इस ब्रांचेड चेन अल्केन की, तो ब्रांचेड चेन अल्केन क्या होती है? अल्केन्स containing one or more branches. किसकी branches? Of carbon atoms. Of carbon atoms attached to the, किसकी? Attached to the, we can say straight chain. Straight chain of carbon. यानी ऐसे अल्केन्स जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस अटैच हुई होंगी, कार्बन एटम्स की एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस किसके साथ अटैच हुई होगी? स्ट्रेट चेन के साथ, ठीक है। तो इस तरह के अल्केन्स को हम बोलते हैं ब्रांचेड चेन। ब्रांचेड तभी नाम रखा गया क्योंकि इसमें क्या होते हैं? कार्बन ग्रुप्स लगे होते हैं। और याद रखना है आपको कि मैं आपको साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट या जो भी चीजें याद रखने वाली होती है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं कि पहले और लास्ट वाले कार्बन को छोड़ के अगर किसी भी कार्बन पे कोई भी
कार्बन का ग्रुप लग रहा है, जैसे मिथाइल लग रहा है, इथाइल लग रहा है, ठीक है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी कार्बन का ग्रुप लग रहा है, हम उस चेन को क्या बोलते हैं, ब्रांचेड चेन अल्केन बोलते हैं। और याद रखना है, स्ट्रेट चेन अल्केन में हमने कहा था कि एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ब्रांचेड चेन में एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे ये वाला कार्बन आप पकड़ो, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, यानी 1 2 3। इस तरह से ये वाला कार्बन जो है कितने कार्बन से मैक्सिमम जुड़ सकता है, 1 2 3। तो याद रखना है कि ब्रांचेड चेन अल्केन में क्या होता है, कार्बन इज मैक्सिमम बॉन्डेड और लिंक्ड टू 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, जबकि स्ट्रेट चेन अल्केन में एक कार्बन 2 कार्बन के साथ मैक्सिमम जुड़ा होगा। और ब्रांचेड चेन अल्केन जो होते हैं ऐसे अल्केन जो होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा कार्बन के ग्रुप्स जब जुड़े होंगे स्ट्रेट चेन के साथ, तो उसको ब्रांचेड चेन अल्केन बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कि ये ब्रांचेड चेन अल्केन्स जो होती है इनके टाइप्स कितने होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और 50 to 60% जो भी स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे होते हैं 11th और 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कंफ्यूज रह जाते हैं। ठीक है, कि ब्रांचेड चेन अल्केन में जो भी हम टाइप्स आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आइसो और नियो है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसो किसको बोलेंगे और नियो अल्केन किसको बोलेंगे। आज जो भी आपका कंफ्यूजन है इंशाल्लाह आपका वो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ब्रांचेड चेन अल्केन जो हमारे हैं, ब्रांचेड चेन अल्केन्स, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं आइसो टाइप, क्या हो गया, आइसो टाइप। और दूसरा जो होते हैं उनको बोलते हैं नियो। ठीक है, तो आइसो एल्केन्स हम लिखेंगे और नियो एल्केन्स हम लिखेंगे। क्या आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज आइसो, व्हाट आर आइसो अल्केन्स एंड व्हाट आर नियो अल्केन्स? आइसो अल्केन्स किनको बोलेंगे और नियो अल्केन्स किनको बोलेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर आइसो अल्केन्स, व्हाट आर आइसो अल्केन्स? किस किस आइसो अल्केन्स जो है ये किसका टाइप है, ब्रांचेड चेन अल्केन्स का। तो आइसो अल्केन्स, अगर हम सिंपल वर्ड में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, आइसो अल्केन्स ऐसे अल्केन्स होते हैं जब कार्बन चेन में सेकंड कार्बन पे या एंड वाले, अगर एंड वाला जो सेकंड कार्बन होगा, अगर उस पे कार्बन कार्बन क्या होगा, कार्बन का ए ग्रुप अटैच होगा, कार्बन का ए ग्रुप अटैच होगा, तो उस वाले अल्केन को हम क्या बोलते हैं, आइसो अल्केन। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि कार्बन की कोई भी चेन ले लो, अगर सेकंड वाले कार्बन पे, चाहे आप शुरू से करो स्टार्ट या एंड से करो स्टार्ट, जो आपका सेकंड वाला कार्बन है, अगर उस पे कोई भी कार्बन का ग्रुप है, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, तो मगर एक कार्बन का ग्रुप जब सेकंड वाले कार्बन में प्रेजेंट होगा, स्टार्टिंग से या एंड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मानो मेरे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे शुरू से, तो सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अगर सेकंड वाले कार्बन पे कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा होगा, या एंड से अगर हम यहां से शुरू करेंगे, तो पहला कार्बन ये हो गया, सेकंड कौन सा होगा, पहला ये, दूसरा ये, इसी तरह से तीसरा ये, चौथा ये। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो दूसरा कार्बन ये है, इस पे अगर कोई कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो अल्केन। या अगर मैं एंड से आऊं, ठीक है, एंड से आऊं, तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, अगर यहां से भी कोई कार्बन इस पे क्या है, लगा होगा, कार्बन का कोई भी एक ग्रुप लगा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसो अल्केन। तो याद रखना है कि जब भी अल्केन चेन में दूसरे कार्बन पे या एंड वाले दूसरे कार्बन पे कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा होगा, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी कार्बन की चेन होगी, कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट होगा, उन अल्केन्स को हम आइसो अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं आइसो अल्केन्स की। वी विल राइट अल्केन्स containing, what are isoalkanes, alkanes containing one methyl group present at second or second last carbon of the alkane chain। ये हो गए आपके आइसो अल्केन्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आइसो अल्केन्स किनको बोलते हैं। आइसो अल्केन्स ऐसे अल्केन्स होते हैं जिन अल्केन्स में दूसरे कार्बन पे, या तो स्टार्टिंग में, या तो अगर आप सेकंड लास्ट देखोगे,
ठीक है, यहां से देखो, यहां से देखो, जो आपका सेकंड कार्बन आ रहा है, अगर उस पे एक कार्बन का ग्रुप लगा है, जैसे एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो ऐसे अल्केन्स को हम आइसो अल्केन्स कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ऐसे अल्केन्स which contain one methyl group or which contain one carbon group at second or second last carbon atom of the main chain, such type of alkanes are known as isoalkanes। तो second carbon पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे, अगर आपका सेकंड कार्बन पे यहां से या यहां से सेकंड कार्बन पे अगर आपका कोई भी कार्बन ग्रुप, कार्बन की चेन, कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे अल्केन्स को हम आइसो अल्केन्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, सॉरी, CH2 एंड CH3, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अगर दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, इसका तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसो अल्केन। क्यों बोलेंगे आइसो अल्केन, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे एक कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है। तो सच टाइप ऑफ अल्केन्स आर नोन एज आइसो अल्केन्स। उसका नाम क्या होगा, नाम भी मैं बोल देता हूं आपको कैसे करना है। फर्स्ट आपको लिखना है आइसो। आइसो क्यों है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है। फिर नाम कैसे करना, यू हैव टू काउंट ऑल द कार्बन्स, सारे कार्बन्स को काउंट करना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली चेन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। यू हैव टू राइट आइसोपेंटेन। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आइसोपेंटेन। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड लेते हैं और यहाँ पे सेकंड कार्बन ये है, तो सेकंड कार्बन पे मैं एक कार्बन का ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। तो हमने डेफिनेशन में भी बोला था, ऐसे अल्केन्स जिनमें सेकंड कार्बन पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा या एक कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा, उनको आइसोएल्केन्स बोलते हैं। तो ये भी टाइप किसकी है, आइसोएल्केन की, पहला कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन। चाहे आप यहां से काउंट करो तब भी ये सेकंड आएगा, आप यहां से काउंट करो तब भी ये सेकंड आएगा। और सेकंड पे जब भी कार्बन का ग्रुप, मगर एक ग्रुप प्रेजेंट होगा, आइसोएल्केन बोलते हैं। और इसका नाम क्या होगा, आइसो। जरा काउंट करो, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो दिस इज आइसो ब्यूटेन, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं यहां से आपको फाइनल एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मेरे पास है, ठीक है, तो क्या है, ये आइसो में आएगा, जी हाँ, क्योंकि यहां से अगर आप काउंट करोगे, यहां से तो ये सेकंड नहीं आ रहा, लेकिन एंड से अगर आप देखोगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप या एक कार्बन का ग्रुप मौजूद है, प्रेजेंट है। तो ऐसे अल्केन को भी हम क्या कहेंगे, आइसो अल्केन कहेंगे। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो। फिर काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, सात वाली चेन को बोलते हैं हेप्टेन। दिस विल बी आइसो हेप्टेन। आई होप कि आइसो का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि आइसो अल्केन्स ऐसे अल्केन्स होते हैं जिन अल्केन्स में सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप या एक कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा। such type of alkenes are known as isoalkenes. Now remaining is neoalkane। अब नियो किसको बोलेंगे, जिसको आइसो समझ आएगा या आ गया होगा, वो खुद ब खुद नियो अल्केन को याद रख सकता है। आइसो नियो में एक चीज का फर्क है, आइसो मीन्स जब सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा, एक कार्बन का ग्रुप होगा। नियो में क्या होता है, सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए या दो कार्बन ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। आइसो में एक होना चाहिए, नियो में दो होने चाहिए, ये फर्क है। तो हम कहेंगे अल्केन्स containing two methyl two methyl groups or carbon groups present at second or second last carbon atom of the normal chain। अब समझ आया होगा आपको कि डिफरेंस क्या है। आइसो में सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन जो नियो वाला होता है इसमें एक की जगह दो ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, अगर मेरे पास कोई नॉर्मल चेन है और ये क्या है, सेकंड कार्बन है, अगर यहां से काउंट करेंगे तो दिस विल बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहां से ये सेकंड है, यहां से ये सेकंड है, कोई भी वाला ले लो, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। और अगर सेकंड कार्बन पे क्या है,
आपके 2 कार्बन के ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इस तरह के अल्केन को हम आइसो नहीं कहेंगे, नियो कहेंगे, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ अल्केन ये ब्रांचेड है और इसको नियो बोलेंगे क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन के ग्रुप्स या 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, ये हमारे पास एक बढ़िया एग्जांपल जहां पे सेकंड कार्बन पे, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकंड कार्बन हमारा है और सेकंड कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इस वाले कंपाउंड को आइसो नहीं लिखना है, नियो लिखना है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुप है, और 2 ग्रुप वाले ऐसे अल्केन को क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। और नाम क्या आएगा इसका, नियो। फिर जरा देखो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन। तो जहां पे भी आपको दिखे कि कोई ब्रांचेड चेन है जिसमें सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन के ग्रुप से है, 2 मिथाइल ग्रुप से, तो कॉमन नेम में उसको लिखेंगे आप आगे नियो, ठीक है। और अगर सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन ग्रुप है, तो उसको आप लिखोगे आइसो। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या इसको हम नियो कह सकते हैं, यस। क्यों, क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पे नहीं है, लेकिन एंड वाले से करेंगे स्टार्ट, तो ये पहला कार्बन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन। और सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 कार्बन के ग्रुप्स हैं, तो इट विल बी आल्सो कॉल्ड एज नियो। और नियो के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन। तो ये हो गया types of carbon chains in organic compounds. We have found that there are 2 types of carbon chains present in organic compounds. First one is known as straight chain alkane, in which we can say straight chain alkanes are the alkanes containing continuous chain of carbon atoms, और एक कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा होता है। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट में स्ट्रेट कार्बन चेन स्ट्रेट होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचेड चेन में आपको पता है कि अल्केन्स जो होते हैं वो एक ऐसी चेन बनाते हैं कार्बन की जहां पे कार्बन में ब्रांचेस लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। और ब्रांचेड चेन अल्केन्स में कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन से जुड़ा होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेड चेन अल्केन्स, फर्स्ट वन इज नोन एज आइसो एंड सेकंड वन इज नोन एज नियो। आइसो अल्केन्स ऐसे अल्केन्स होते हैं जिनमें सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा। और नियो वाला एक ऐसा अल्केन होता है, ब्रांचेड चेन अल्केन की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या होगा, 2 मिथाइल या 2 कार्बन के ग्रुप्स अटैच होंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो होगा आपको अच्छा लगा होगा, इफेक्टिव लगा होगा। अब अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इन वीडियोस को शेयर आप कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके को क्लासमेट्स हैं, ठीक है। और लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस भेजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से एक्चुअली मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट I was not able to deliver lectures. Now I'm recovering a bit, और आज सोचा कि आपको क्लास आज मैं दे दूं। तो आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, खुदा हाफिज, और अपनी सेहत का और आस पड़ोस का ख्याल रखें।